level, you realize that the park has been managed really well. And while all of this happens, the company went through so much. None of y'all would ever know that if y'all didn't know these people. None of y'all would ever know that if y'all didn't invest in Imagica or Ad Labs Entertainment, as it was then called, lost some money and then made some money back. But through the period with which these guys went through, it could have been one of the most tough periods for anyone when it came to financial operations of a business. But add to that the complexity and the uncertainty of COVID. Through all of this, trying to ensure that the park was kept very well, people stuck with them, they themselves stuck through with the company, because it's very easy at that point to leave. But both of them were there, and the seriousness with which this matter was handled, without losing your sense of humor and sense of self, was something which was incredible and something that has been captured in this book. I have read every word of this book, and it is no less than a very good Bollywood movie. If you haven't sold the rights to making this into a movie, you must right away. And they are the modern version of the Jaane Bhi Do Yaro guys, or also, Vijay and Veeru. It's incredible the way this book has been written. So I will obviously not talk much about what's inside this, because you have to buy this, read it, get it signed from him, both of them. And right now we'll talk about the situations that they went through and how they navigated through those situations. The first thing that I have to ask both of y'all is, how do you all come together? Because, people become friends for life, and in school, in college, maybe family members, family friends, etc. Office में जो दोस्त बनते हैं जरूरी नहीं है यार वो life के लिए रहे. And that was potential CEO and CFO. ये कैसे हुआ? How did that happen? So first of all, I was never a potential CEO. I always thought, how was I chosen in a circumstances where I did not come from a financial background. I was more a retailer, merchant category. So the first incident that we had was actually more of an altercation. We were trying to pursue a deal, and there I thought Mayuresh was not responding so quickly, and as my reputation goes, I kind of gave him saying that what the hell is happening, and he was at a very precarious situation at that time for which we had no idea. You want to say your part now? So you started with the fight. Proper fight. And Mayuresh is generally not known to be someone who loses temper, or he's the Swami Dada of our company, Shant Dada. That's exactly what had happened, and tempers were flying high, and as Dhiman said, at my end they don't really fly. What year was this? This was March of 2017. Okay. The time was still good. Okay. The time was a little shaky, but yet we were not an NPA, so time was good in that sense. But yes, there was a transaction which we had spoken about, and Dhiman, was pursuing that transaction. He was believing that the transaction has moved ahead. I was dousing some other fire at that point of time, and one of the things that the book will also say is that a lot of communication, in crisis or in good times, is not as ideal as it should be. So the problems were kept to the finance team or to the select few. So he was not aware of those problems, and when he was, raising the issue about the transaction, what about the other deal? So I was telling I was dousing a more critical fire. Now he didn't get it, and I didn't get it how critical it was, and that was a big showdown that happened. So that was our first professional interaction at that point of time. Obviously, it would have crossed both of us mind that, yaar, iske sath kaam karna to mushkil hoga. He would have also thought that way. I would have also thought that way. But the ice breaking happened, and you know how it happened? It happened very funnily. You want to narrate that? So there were 3-4 colleagues who were exiting the company incidentally at pretty much the same time. So there was a farewell party to that, and during end of that party, while the party was going on, Dhimant is a teetotaler, and I'm sure you know that, and I'm not. That also most of them will know. So we both started dancing together, and we both aren't great dancers. I think we danced as if there was no tomorrow.
So शादी वाले dance steps is what I am famous for, and we were actually dancing as if it was a welcoming party rather than a farewell party. I don't know what he was high on, but I know what I was high on. But we were dancing together, and that created a kind of a bond which got us into talking terms, and rest is history. I just इस बुक से माध्यम से हम स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, एंटरप्रेन्योर्स को ये बताना चाहते हैं कि अगर आप में कोई जिज्ञासा है और आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की आपकी इंटेंट है, तो कोई भी प्रॉब्लम कितना भी बड़ा हो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, और एक टीम वर्क जो होता है, टीम वर्क के माध्यम से आप बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और इन कॉर्पोरेट इंडिया हमने इतने प्रॉब्लम्स देखे हुए हैं। आज हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी कंपनियां एनपीए बनती है, बट उनकी रिकवरी प्रोसेस हम लिखना चाहते थे कैसे हो सकती है, उसमें हमने क्या सीखा, एंड उस माध्यम से हम बाकी कंट्री को ये बताना चाहते हैं कि यू कैन डू इट। सो ये बुक के द्वारा हम ये कहना चाह रहे हैं कि उम्मीद सबसे बड़ी चीज़ होती है, और कई सारी कठिनाइयाँ आपके पास आएंगी, कई सारी विपदा आएंगी, लेकिन आप एकजुट होके, आप जैसे एक टीम वर्क जिसे कहते हैं, आप हर एक कठिनाइयों को आप कैसे पार कर सकते हैं। तो ये बुक में हमने हमारी जो भी जर्नी बताई है, जो भी हमारी पूरी की पूरी स्टोरी रही है, वो ट्रू स्टोरी है। और ये चीज़ें हमने एक संक्षिप्त तरीके से कहना चाहिए कि जिससे आपको एक ये स्टोरी से एक एडवांटेज ये होगा कि आपको इजी टू अंडरस्टैंड आइडियाज़ मिल जाएंगे, जिससे आप कठिनाइयों का सामना कर सकें। और हम यही चाहते हैं कि किसी को कहीं पे भी हमारी बुक से कुछ फ़ायदा हो, हम इससे बेहद खुशी होंगे। बुक का नाम है रोलर कोस्टर ऑफ होप। रोलर कोस्टर इमेजिका और रोलर कोस्टर एक सिनोनिमस हो गए कि इंडिया लार्जेस्ट थीम पार्क। तो ये जब मुश्किल टाइम में गया, तब होप, उम्मीद, ये चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक दिन आगे बढ़ के आप बड़े बड़े क्राइसिस सॉल्व कर सकते हैं। इस बुक के माध्यम से हम पूरे हिंदुस्तान को ये बताना चाहते हैं कि यू कैन डू इट, एंड अगर आप में उतना इंटेंट आपका अच्छा हो और आप मेहनत लगाए, तो आप बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। रोज कुछ ज़्यादा और रोज कुछ बेहतर। ये बुक में हमने हमारी 4 साल की जो पूरी जर्नी रही, वो हमने इसमें नरेट की है। हमने बेसिकली जो समय से हमने कंपनी का एक ऑपरेशनल चार्ज लिया, वहाँ से लेके चेंज ऑफ प्रमोटर या बैंक के साथ जो एमिकेबल रिजोल्यूशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ, वहाँ की हमने जर्नी इसमें कवर की है। हमारी यही इच्छा थी कि इस कहानी और इस जर्नी के द्वारा हम एक अच्छा मैसेज और एक अच्छा निचोड़ हमारे रीडर्स को दे पाएँ। और एक यही है कि टीम वर्क और जो भी एक कठिनाइयाँ होती है, आप साथ मिलके एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेशन बढ़ा के, एक दूसरे से ईगो ना रखते हुए कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। और वही हमारी और इस जर्नी में 2 साल थे कोविड के, तो 2020 और 21 कोविड ये इंडस्ट्री के लिए सबसे मुश्किल समय था। 18 महीने पूरा लॉकडाउन था, जबकि बाकी इंडस्ट्रीज 3 या 4 महीने में चालू थे। हमारे बैंक अकाउंट में बिल्कुल कोई पैसे नहीं थे कंपनी के। उस हालात से हमने कैसे रिकवरी लाई, ये बुक में हमने ये नरेट किया हुआ है। एंड ये सब सच घटनाएं हैं, इसमें कोई फिक्शन नहीं है, इसलिए हम बहुत एक्साइटेड है इस बुक के बारे में। करंटली अभी फिलहाल इंग्लिश में है, लेकिन इसको हिंदी, मराठी और गुजराती में हम इसका वर्जन लाने के सोच पे हैं। सो ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये सचमुच कहानी है। इंडिया के लार्जेस्ट थीम पार्क इमेजिका इस बारे में है। ये पूरी कहानी इमेजिका के टर्न अराउंड जो हुई थी, मुश्किल हालात से हम वापस कैसे आए। हमारी मार्केट कैप एक ज़माने में 40 करोड़ की थी, उससे हम 4 साल में 4000 करोड़ तक हमारी मार्केट कैप गई।
सो ये इमेजिका कंपनी की कहानी है, ये हम दोनों की कहानी है, ये पूरे टीम की कहानी है जो हमने साथ मिलके बड़ी मुश्किल परिस्थिति में ये कंपनी को टर्न अराउंड कैसे किया। पूरे टीम की कहानी हमारी जुबानी, और एक ही हमारा मकसद है कि टीम वर्क के साथ आप आगे बढ़ो। और इमेजिका एक वर्ल्ड क्लास पार्क है, और जितने भी कठिनाइयाँ आई या जो भी संकट की घड़ी आई थी, वो सबके आगे हमने हमेशा हमारे गेस्ट को, एक्सपीरियंस को आगे रखा और हमारी एसेट को हमने मेंटेन किया, और इस तरह से कंपनी और भी दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ने के माध्यम में जा रही है। क्या रीजन रहा था इमेजिका जैसी ब्रांड कंपनी का डाउनफॉल होना, और आप लोगों ने उसको किस तरह से बाहर निकाला, संक्षेप में अगर बताना। तो हमारे हिसाब से ये प्रोजेक्ट एक वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट है और वेरी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, और हमारे हिसाब से ये इंफ्रास्ट्रक्चर और समय से थोड़ा आगे हो गया, और एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए एक बेंचमार्क या एग्जाम्पल नहीं होता, तो हमारे हिसाब से यही है। बाकी तो और इस प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्टमेंट लगी वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से इन्वेस्टमेंट लगी थी, लेकिन उसमें जो लोन लगा था वो थोड़ा जितनी कैपेसिटी थी प्रोजेक्ट की रीपे करने की उससे थोड़ा ज़्यादा बन गया, इसलिए हमेशा एक मिसमैच रहा था कैश फ्लोज में। इसको एड्रेस करने के लिए कोई मामूली काम नहीं था, क्योंकि इसमें 13 बैंक्स थी जिन्होंने इसको लोन दिया हुआ था, और इनके साथ मिलके हमने कैसे ये कठिनाई को रिजॉल्व किया, ये इस बुक के माध्यम से हम सबको बताना चाहते हैं। डाउनफॉल के दौरान इन्वेस्टर्स का क्या रहा उसके बारे में बताना चाहिए, इस बुक में क्या होगी। तो इस कठिन परिस्थिति में आपके पास कई स्टेक होल्डर्स होते हैं। एक इन्वेस्टर जो ऑलरेडी जिसने प्रोजेक्ट लगाया, एक जो इन्वेस्टर आ सकता है, एक है एम्प्लॉइज, एक है शेयर होल्डर जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं। हम एक लिस्टेड कंपनी है, ये सबको बैलेंस करते हुए इनकमिंग इन्वेस्टर को कैसे फिजिबल बनाया जाए, ये एक संतुलन कैसे मेंटेन किया जाए, इसका कोई ब्लैक एंड वाइट आंसर है नहीं, लेकिन एक फाइन बैलेंस कैसे स्ट्राइक कर सकते हैं, विन विन सिचुएशन अगर लोगों के लिए आप क्रिएट कर सके तो इसमें लोगों की वैल्यू बरकरार रहती है। वरना हम देश में देख रहे हैं कि काफ़ी कंपनीज के प्रॉब्लम में आने से वैल्यू डिस्ट्रॉय हो रही है। हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू इसमें से मेंटेन हो इन द बेनिफिट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। इंटरव्यू के दौरान बताया कि आपका पर्सनैलिटी जो है आने वाले टाइम में आप मुझे लगता है कि उनको वैसे ही काफ़ी सारी ऑफर आती होंगी जो उन्होंने बताई नहीं है, बट बिल्कुल ये बड़े कलाकार। हमारे प्रमोटर जो थे मनमोहन शेट्टी जी, वो एडलैब्स फिल्म से थे, तो उनका तो बॉलीवुड बैकग्राउंड था, लेकिन ये कहानी बॉलीवुड की कहानी से भी कोई कम नहीं है। हम इसमें प्रोफेशनल्स का रोल कर रहे थे, ये हमारा किरदार था, ये हमारा फर्ज था। हमने काफ़ी कुछ किया जो कोई हमारी जगह पे शायद वो करते थे, बट शायद हमारी बॉन्डिंग या हमारा टीम वर्क जो था, इसकी वजह से, जैसे वो शोले के जय वीरू जैसा कॉम्बिनेशन बता रहे थे, तो थोड़ा अलग किस्म का है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन की वजह से एक हैप्पी एंडिंग सिचुएशन हो गई। सर लास्ट फ्रॉम माय साइड, इस बुक को पढ़ने के बाद लोग क्या सीखेंगे उसके बारे में कुछ बताना चाहिए। तो हम तो पहले ये चाहते हैं कि देखिए हर एक जन की कुछ ना कुछ कहानी रहती है, और हर एक की कहानी कुछ ना कुछ फॉर्म में बाहर आए, जिससे ज़्यादा लोगों को एक प्रोत्साहन मिले, जिससे वो लिखे। दूसरी बात यह है कि हर एक कहानी से अगर कोई कुछ सीख पाता है और कुछ सीख से अपने लर्निंग को कम करके मिस्टेक्स कम होगी, वही सबसे बड़ा हमारा मकसद है। तो हम ये चाहते हैं कि बस आप अपनी कहानी लिखो, अपनी गलतियां हो या अपनी सक्सेस हो, दोनों को एक तरह से ट्रीट करो और आगे बढ़ो। हमने इस कहानी में काफ़ी मुश्किल सिचुएशन में भी मजाक हमने जो किया, आज हम देख रहे हैं कि हम अच्छे परिस्थिति में है, बट मुश्किल टाइम में थोड़ा मजाक करना बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। तो हमने कई जगह पे मजाक, जब स्ट्रेस होता है लाइफ में, जब लाइफ में होता है स्ट्रेस, तो एक एक वन लाइनर्स हमारे हुआ करते थे। हम कहते थे हर एक फ्रेंड ज़रूरी है, जो कैचलाइन थी, और हमको इस मुश्किल परिस्थिति में कई फ्रेंड्स भी काम आ गए। हमने कोई भी फ्रेंड्स को जो हमको हेल्प कर पाए, हम सब ने हेल्प ली। हमने कभी शर्मिंदा नहीं रखी कि हमने किसी को हेल्प मांगने गए, और हर किसी मित्र ने हमको कोई ना कोई तरीके से हेल्प किया, और इस वजह से हम इस मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकले। थैंक यू सो मच। थैंक यू।